91 उसकी 15वीं और 16वीं आयत। सबूर 91 91 जिन्होंने उर्दू समझ नहीं आती। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे अमल किए जाने कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। बैठिए। आज फिर हम दुआ के मुतल्लिक कुछ बातें खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। ये हवाला जो पढ़ा गया है सब ने सुना इसको? ही सुना या सिर्फ सुनया ही है? पता ही नहीं की सुना। क्या सुना है? वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। अब जो पुकारना है और फिर इस खुदा से जवाब लेना, ये दुआ है। क्या है ये? दुआ। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे। दुआ के अंदर बहुत भेद पोशीदा है, बहुत सारे भेद जिन्हें हम नहीं जानते। जब आप दुआ में बैठते हैं तो भेद आप पर आश्कारा होते हैं। वो मुझे पुकारेगा। पहली बात तो यह है कि पुकारना है। क्या करना है? पुकारना है। दुआ के जरिए से, दुआ के वसीला से हम अपने खुदावंद को क्या करते हैं? हमने गुज़श्ता जुमा को सताइश के तल्लुक़ से, प्रस्तश के तल्लुक़ से चंद बातें सीखी थी। आज हम दुआ के तल्लुक़ से चंद बातें सीखेंगे। दुआ में हम जो वक्त गुजारते हैं, जो टाइम हम खुदा के हुज़ूर में दुआ के वसीला से गुजारते हैं, इसमें तारीख़ को बदल देने वाली ताकत और दुनिया को हिला देने वाली ताकत है दुआ करना। जब हम खुदा के हुज़ूर दुआ में वक्त गुजारते हैं, ये वो वक्त होता है जो इंतहाई कीमती वक्त होता है, बहुत ज़्यादा कीमती वक्त होता है। और इसके अंदर इतनी पावर, इतनी ताकत होती है कि ये तारीख को बदल, दुनिया को हिला। आयत ज़बूर 91 उसकी 15-16 आयत। ताकत मौजूद होती है जिसको सिर्फ ईमानदार ही जानते हैं, दुनिया इसको नहीं जान सकती। दुनिया के लोग इसको नहीं जान सकते। ये सिर्फ वो लोग जो दुआ में वक्त गुजारते हैं, खुदा की हज़ूरी में खुदा को पुकारते हैं, खुदा से रिफाकत रखने वाले लोग हैं, वही इसकी ताकत से वाकिफ हैं। पहली बात जो है वो ज़रूर हम गौर से सुनेंगे। हमारी शख्सी दुआ बड़ी पावरफुल होनी चाहिए।
شخصی دعا کے اندر بڑی پاور ہے اور یہ بلا ناغہ دعا ہونی چاہیے شخصی طور پر. دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں اکیلے، کلیاں، تنہائی میں دعا. کیونکہ جب ہم شخصی دعا میں وقت گزاریں گے تو اجتماعی دعاؤں میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں. جیسے اب جماعتی طور پر ہم جہاں پر موجود ہیں، دعا دا کیا جانتا ہے، کوئی کرتا ہی نہیں دعا. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اس نے شخصی دعا میں وقت نہیں دیا، شخصی طور پر خدا کے حضور وہ نہیں بیٹھے. جب ہم شخصی طور پر خدا ان کے حضور بیٹھیں گے، دعا میں وقت گزاریں گے، بلا ناغہ دعا کریں گے، تو تبھی ہم اجتماعی طور پر بھی دعا کے اندر مضبوط ہو جائیں گے. پھر نہ تو ہمیں کوئی شرم آئے گی، نہیں بعض شرم آتی سن دعا کر لیں گے اور کام کر لیں گے، شرم نہیں آتی، کئی جھجکتے رہتے ہیں، کئی ڈرتے نہیں دعا کرتے، پتہ نہیں کی ہوئے گا، میں پتہ نہیں کنج دی دعا کراں گا، کنج دی دعا کراں گی. خدا تو آپ کی نیت سے واقف ہے نا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اندر کی جو دل کی نیت ہے، سوچ ہے، اس سے واقف ہے. متی 6 آیت میں لکھا ہے، پوشیدگی میں چلا جا، دروازہ بند کر لیں. 6 آیت متی. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح دعا کے تعلق سے ہمیں ایک بڑی اہم ہدایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، پڑھیے. ہاں، جب تو دعا کرے تو کہاں چلا جائے؟ اپنی کوٹھڑی میں. کوٹھڑی سے مراد کیا ہے؟ دروازہ بند کر لے. اس سے مراد شخصی طور پر تنہائی میں اپنے خدا کے حضور جھک جا، تنہائی میں اپنے باپ کے آگے اپنے گھٹنوں کو ٹیک لے، تنہائی میں اس کے آگے دعا کر. پوشیدگی میں، جب آپ پوشیدگی میں دعا کرتے ہیں تو جو باتیں آپ اجتماعی طور پر خدا سے نہیں کر سکتے، وہ پوشیدگی میں آپ بڑی دلیری کے ساتھ کر سکتے ہیں. کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم عام طور پر بیان نہیں کر سکتے، لیکن تنہائی میں اپنے باپ کے سامنے ہم دلیری کے ساتھ ان باتوں کو بیان کر سکتے ہیں. اس لیے پوشیدگی میں جاؤ، تنہائی میں جاؤ، شخصی دعا کو مضبوط بنا دے. میرے عزیزو، یہ بات خداوند یسوع مسیح کے علاوہ اور کسی نے بھی نہیں کی. اور تنہائی میں دعا مانگنے سے بہت ساری باتوں کے بھید ہم پر آشکارا ہوتے ہیں. میں نے بہت ساری باتوں کے بھید تنہائی میں پائے، بہت ساری باتیں. اور خداوند ہمارا خدا جب ہم تنہائی میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر پوشیدہ بھید ہم پر ظاہر کرتا ہے اور بہت ساری باتوں کی سمجھ آتی ہے اور کئی باتوں کا یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے. سانو جتنا بھی یقین نہیں، بھروسہ نہیں، لیکن جب آپ تنہائی میں جا کر دعا کرتے ہیں تو پھر کئی باتوں کا یقین، ایمان بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمیں ایک صحیح تحریک ملتی ہے، ہم ایک تحریک کو حاصل کرتے ہیں، دعا کرنے کی تحریک
क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सानू तो दुआ ही नहीं करनी, लेकिन जब आप तन्हाई में जाएंगे, खुदावंद के ज़रूर झुकेंगे, तो आपको ज़रूर एक तहरीक मिलेगी दुआ करने की तहरीक। मत्ती 6:5 को पढ़िए और देखिए कि इसमें क्या कुछ हमारे लिए मौजूद है। जी जी हाँ वो अपना अजर पा चुके। देखिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया, जब तुम दुआ करो तो किन की मानद नहीं बनना, रियाकारों की मानद, धोखा देने वालों की मानद, फरेबकारों की मानद नहीं बनना। हमें सही तहरीक मिलती है, सही एक सिमत मिलती है जिसकी तरफ हमें जाना है। जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो। अब हमें पता चलता है ना हमें कैसे बनना है, दुआ के अंदर क्या बनना है, कैसे होना है। ना बनो क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों में मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। अब यहाँ पर जो ये लोग दुआ कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? रियाकार किस तरह से दुआ मांगते हैं, क्या करते हैं वो, कहाँ कहाँ वो जाकर दुआ करते हैं? इसकी उनका जो मकसद क्या होता है कि लोग उनको क्या करें, देखें, लोग उन्हें देखें, लोग उनकी वाह वाह करें, लोग उनको जाने कि ये वाकई बड़ी दुआ करने वाले लोग हैं। वो दिखावा करते हैं, क्या करते हैं? दिखावा करते हैं। और हमें जब हम पोशीदगी में अपने खुदावंद के हुजूर में जाते हैं तो हमें एक सही तहरीक मिलती है, हमें किस तरफ को जाना है, हमें किस तरह से दुआ करना है। और लिखा है बाज़ारों में मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको क्या करें, कौन देखें? लोग देखें, लोगों को दिखाने के लिए। और बहुत से लोग रोज़े भी रखते हैं लोगों को दिखाने के लिए, नमाजें पढ़ते हैं लोगों को दिखाने के लिए, और कई निशान बना लेते हैं कि जब हम बड़ी दुआ करते हैं निशान उनके ऊपर होते हैं, निशानात होते हैं ताकि लोग देखें, लोग दिखावा। और कोई भी बात, कोई भी काम जो खुदा के तल्लुक से, इबादत के तल्लुक से है, मसबी फरीज़े के तल्लुक से है, कोई भी काम दिखावे का खुदा को पसंद नहीं है। तो क्या क्या लिखा है? दुआ करना पसंद करते हैं, वो अपनी पसंद को देखते हैं, खुदा की पसंद को नहीं देखते। दुआ में तहरीक देती है कि हमारी खुदा की पसंद क्या है। इसलिए हमें सबसे पहली बात यह है कि हमें तन्हाई में, पोशीदगी में बिला नागा दुआ को करना है। हमने जैसे पढ़ा, वो मुझे पुकारेगा। यहाँ कितने लोगों की बात हो रही है? वो मुझे पुकारेगा, कितने लोगों की बात हो रही है जी? पढ़िया भी है चाचा नाल, सिर्फ एक की बात हो रही है सब की। मैनू लगता ध्यान किते हो रहे, कान किते हो रहे, सोच किते हो रही। कितने लोगों की बात हो रही है? वो मुझे पुकारेगा। वो कितने हैं? एक की बात हो रही है। और ये तन्हाई की बात हो रही है, ये पोशीदगी की बात हो रही है। जैसे हमने मत्ती में पढ़ा, पोशीदगी में चला जा,
تیری باپ کے ساتھ پوشیدگی میں ملاقات کر، اس کے ساتھ رفاقت رکھ، اس کے ساتھ ملاپ کر، اس کی حضور میں پکار اسے، تو وہ تجھے تیری دعا کا جواب ضرور تجھے ملے گا۔ ہاللیلویا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ ہم پکارتے نہیں ہیں، خود نہیں پکارتے، دوسرے نے کہنے نہیں ساڑھے لیے دعا کرو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے دوسروں کو کہنا، خادموں کو کہنا، لیکن ہم خود کتنی دعا کرتے ہیں؟ ہم خود کتنا شخصی طور پر اپنے خدا کے ساتھ رفاقت کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، بلا ناغہ کتنا ہم اس کی حضوری میں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے صحیح تحریک ملتی ہے جب ہم دعا میں، پوشیدگی میں خدا کے حضور ٹھہرتے ہیں۔ پھر دوسری جو بات اس کے اندر، دوسرا پوائنٹ جو ہے تنہائی میں دعا کرنے کا، خدا کے ساتھ بطور باپ صحیح رشتہ قائم ہوتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں جی؟ خدا کے ساتھ بطور باپ صحیح رشتہ قائم ہوتا ہے، کیونکہ جب باپ اور بیٹا یا باپ بیٹی تنہائی میں بات کرتے ہیں، کھل کے بات ہوتی ہے، صحیح رشتہ قائم ہوتا ہے۔ مقدس لوکا 11 باب 11ویں آیت، 12ویں اور پھر 13ویں، یہ آیات کو پڑھیے۔ مقدس لوکا 11 باب 11، 12، 13 جی۔ تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے، تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا کیا مانگے، روٹی مانگے، تو وہ اسے پتھر دے، تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، تو مچھلی کے بدلے اس کے ہاتھ میں سانپ پکڑا، یہ لے لے بیٹے، یہ مچھلی ہے، یا انڈا مانگے، یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے، اس کو بچھو دے۔ تم میں سے کون سا ایسا باپ ہے؟ کیا کوئی ایسا باپ ہے؟ تو اس کا مطلب ہے جب ہم خدا کے حضور میں تنہائی میں اس کے ساتھ دعا میں وقت گزارتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارا باپ کا رشتہ جو تعلق ہے وہ اور بھی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور صحیح تعلق قائم ہوتا ہے، کیونکہ باپ کبھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا۔ کون سا ایسا باپ ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے اس کا بیٹا روٹی مانگے تو وہ پتھر پکڑا دے، وہ دیکھو پتھر لے لے۔ کون سا ایسا باپ ہے مچھلی مانگتا ہے تو اس کو سانپ پکڑا دیتا ہے، انڈا مانگتا ہے تو بچھو پکڑا دیتا ہے، یہ لے بیٹے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم خدا کے حضور میں جاتے ہیں تو بطور باپ اس کے ساتھ ہمارا رشتہ تعلق صحیح تعلق قائم ہوتا ہے، اور یہی جیسے ہم دنیاوی طور پر، جسمانی طور پر باپ بیٹے کا رشتے کو دیکھتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ اسی طرح کے رشتے کو، آگے کیا لکھا ہے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، ہاں، تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس نہ دے گا۔ ہاں، بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو، کن کے بچوں کو؟
अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुद्स क्यों ना देगा। अब जब रूह कुद्स बाप हमें देता है तो फिर बाप के साथ हमारा रिश्ता जो है ना, हकीकी रिश्ता कायम हो जाता है। रूह कुद्स के बगैर बाप के पास साथ हमारा रिश्ता, असली जो सही रिश्ता है, वो कायम नहीं होता। कलाम में लिखा है, रूह, खुदा की रूह हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देते हैं कि हम खुदा के क्या हैं, फर्जंद हैं, खुदा के बेटे, खुदा की बेटियां हैं, खुदा से पैदा हुए हैं। ये सही तल्लुक को बहाल करता है। तन्हाई में जब हम दुआ में खुदा के हुज़ूर जाते, उससे मांगते हैं, तो वो हमें पत्थर नहीं देता, हमें मछली के बजाय सांप नहीं देता, हमें अंडे के बजाय बिच्छू नहीं देता, बल्कि लिखा है तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को क्या देगा, क्या देगा? रूहुल कुद्स क्यों नहीं देगा? देगा जब हम उसके हुजूर में झुक जाएंगे और सही तल्लुक के साथ उसके सामने आएंगे। तो क्या मिलेगा? पाकरू मिल गया तो फिर पीछे रह के क्या? हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया और पानी से ऊपर आए तो आसमान खुल गया और उनको 10 कबूतर की मांद उस पर आकर उतर गया, नाज़िल हुआ। तो फिर उसके बाद आसमान से आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? ये मेरा प्यारा बेटा है। आप बाप के प्यारे बेटे और बेटियां बन जाते हैं जब आप उससे मांगते हैं, तो फिर वो रूह कुद्स आपको देता है। फिर आप उसी तरह उसके प्यारे बेटियों और बेटे। ये दुआ है। इस तरह से सही तल्लुक, सही रिश्ता बतौर बाप खुदा के साथ कायम होता है। फिर बाप बेटे का रिश्ता में जो बहाल होता है। और जैसे हमने ज़बूर में भी गया, जिस तरह बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, अपने बेटों से मोहब्बत रखता है, इसी तरह मैं तुम्हारे बाप से ज़्यादा तुमसे मोहब्बत, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है। सही तल्लुक, सही रिश्ता कायम होता है जब हम बिला नागा खुदावंद के हुज़ूर में दुआ में वक्त गुजारते हैं। हालेलुया। बस जब तुम बुरे होकर, क्या लिखा है? बुरे होकर अपने बच्चों को, किनके बच्चों को? अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुद्स क्यों ना देगा। ये मांगने के तल्लुक से बात है, दुआ के तल्लुक से बात है। तो फिर हम पाकरू की मामूली से मामूल पाकरू से भरेंगे। रूह कुद्स का मसा हमारी ज़िंदगी में कायम हो जाएगा और हम हकीकी रिश्ते में बन जाएंगे, बाप और बेटे, बाप और बेटी के रिश्ते में। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन पर मुकम्मल भरोसा। जब हम तन्हाई में दुआ करते हैं तो फिर हमारा मुकम्मल भरोसा किस पर होता है? ज़बूर 55 उसकी 16 से 17 है। ज़बूर 55 16 से 17 आए जी, पढ़ें जी। यहाँ पर खुदा का पाक कलाम, क्या मैं तो खुदा को पुकारूंगा, मैं तो किसको पुकारूंगा? मैं तो खुदा को पुकारूंगा और खुदावंद मुझे बचा देगा, और खुदावंद मुझे बचा लेगा। सुबह शाम सुबह शाम
और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और कराहता रहूंगा। वो मेरी आवाज़ सुन लेगा। वो मेरी आवाज़। अब ये भरोसा, एतमाद, एतकाद, यकीन दिलाता है कि मैं खुदावंद को पुकारूंगा और खुदावंद मुझे बचा। ये भरोसे की बात है, यकीन की बात है। आप जब दुआ में वक्त गुजारते हैं, आपका यकीन, आपका ईमान, भरोसा खुदा पर बहाल होना शुरू हो जाता है और आप यकीन कर लेते हैं कि खुदावंद मुझे क्या करेगा, खुदावंद मेरी दुआओं का जवाब देगा। पर मैं तो खुदा को पुकारूंगा। किसको पुकारूंगा? किसको पुकारूंगा? क्यों? खुदा को क्यों पुकारूंगा? हमने ज़बूर 91 में क्या पढ़ा था? जब वो मुझे पुकारेगा तो मैं क्या करूंगा? इसलिए यकीन है, भरोसा है, एतमाद है कि मैं पुकारूंगा और वो मुझे क्या करेगा? जवाब देगा, मुझे बचा लेगा। मैं मुसीबत में हूं, दुख में हूं, परेशानी में हूं, बीमारी में हूं और बहुत सारे हालात जो मेरे खिलाफ हैं उनमें घिरा हुआ हूं। इब्लीस ने मुझे परेशान कर रखा है, लेकिन तवक्कुल करते हुए, यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए जब खुदा उनको पुकारेंगे तो वो क्या करेगा? वो बचा लेगा। क्या करेगा? वो बचा लेगा। पतरस के बारे में सब जानते हैं। जब यीशु मसीह पानी पर चल रहा था और शागिर्द कश्ती के अंदर थे, उन्होंने यीशु मसीह को अपनी तरफ आते देखकर क्या कहा था कि ये तो कोई भूत है, जिन है। लेकिन यीशु ने कहा, डरो नहीं, मैं हूं। डरो नहीं, मैं हूं। तो पतरस ने कहा, ऐ खुदावंद अगर तू है तो मुझे भी हुक्म दे कि मैं भी चल कर आऊं तेरे पास। तो यीशु ने कहा, वो चलने लगा यीशु की तरफ और उसकी निगाह यीशु पर है। वो यीशु की तरफ जा रहा है, यीशु की तरफ चलते हुए जा रहा है पानी के ऊपर। एकदम उसकी नजर यीशु से हट गई। नजर कहां चली गई? सोच कहां चली गई? ख्याल कहां चला गया? लहरों पर, पानी पर, एकदम से। और जैसे ही यीशु की तरफ से नजरें हटी और सोच, ख्याल पानी की तरफ, लहरों की तरफ चला गया तो डूबना शुरू। अब क्या करना था? हाथ पांव मारता, तीरता, क्या अपना बचाव करूं, क्या किसने किधर मैं डूबन गया? क्या किया उसने? उसने एक पल, एकदम यीशु को पुकारा, क्योंकि उसे यकीन था कि यीशु मुझे। यकीन, दुआ में जब आप बैठते हैं, पुकारते हैं, आपका भरोसा, आपका यकीन बढ़ता चला जाता है और आप यकीन करते हैं कि खुदावंद मेरा बाप मुझे क्या करेगा? बचा लेगा। और वो बचा लेता है। यीशु ने उसने कहा, यीशु। क्या पुकारा उसने? किसका नाम पुकारा? यीशु। जैसे उसने यीशु नाम पुकारा, यीशु ने हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया और फिर यीशु के साथ चलते हुए कश्ती पर। हालेलुया। तो क्या यीशु ने बचाया? जी, कब बचाया? यीशु नहीं देखन दिया, डूबन दिया है? देख रहा था ना।
लेकिन पुकारना जरूरी है, क्योंकि जब आप पुकारते हो तो आप यकीन रखते हो, भरोसा रखते हो कि मेरा खुदा मेरी आवाज को सुन रहा है, वो मुझे बचा लेगा, वो मुझे जवाब देगा। लेकिन जब आप पुकारते नहीं हो तो उसके सामने डोब जो की, क्योंकि तो हमसे भरोसा ही नहीं होते थे, हाँ, यकीन ही नहीं है कि ये मुझे बचा लेगा। अगर पतरस को यकीन ना होता तो क्या वो पुकारता? जी, कभी नहीं पुकारना था, नहीं पुकारना जी। तो फिर जो अगे होना सी फिर वो सारे की जानते। जब हम पुकारते नहीं हैं तो मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि हमने 91वें सबूर में पढ़ा, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत कब? हाँ, पुकारेगा। नहीं पुकारेगा तो फिर रुड़ जा पले, डुबना तो प्यार डुब, क्योंकि आपको तो यकीन ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। पर मैं तो खुदा को पुकारूंगा और खुदावंद मुझे बचा लेगा। सुबह शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और कराहता रहूंगा और वो मेरी आवाज सुन लेगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, वो मेरी आवाज सुन लेगा। पुकारें तो सही उसको, साढ़ा तो मुंह ही नहीं खुलता, की पुकारे, ਸਾਨੂੰ तो पता ही नहीं लगता दुआ की करें। हालांकि बहुत सारी हमारी ज़रूरियात, बहुत सारी हमारे मसाइल होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें होती हैं जो खुदा के हुज़ूर में हम अपने बात के सामने रख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मुंह नहीं खुलता। इसलिए जब हम तन्हाई में दुआ करते हैं या खुदा की रिफाकत में जाते हैं तो खुदा उन पर मुकम्मल भरोसा, यकीन, एतमाद, एतकाद, ईमान बहाल होता चला जाता है। यकीन करते हैं कि जो मैं पुकार रहा हूँ, खुदा से मांग रहा हूँ, वो मुझे, मेरा खुदा मुझे देगा। हालेलुया। फिर चौथी बात, झूठे झगड़ों से दस्तबरदार। झूठे झगड़ियाँ तो हाथ चुक लेना, दस्तबरदार हो जाना, झूठी बातों से, झूठे कामों से, हर एक उस बात से जो खुदावंद के खिलाफ है। ये सारी चीज़ें हमें इसमें मिलती हैं। मरकज़ 7 बाब उसकी 6-7 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों का जिक्र है जो रियाकारी के साथ सारे काम करने वाले थे और खुदावंद यीशु पर उनका कोई ईमान, कोई भरोसा, कोई एतकाद नहीं था। मरकज़ यशायाह ने तो रियाकारों के हक में, यशायाह ने किन के हक में? रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की, जैसा कि लिखा है। ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम, लेकिन होंठों से बड़ी ताज़ीम, बड़ी तारीफ, बड़ी बल्ले बल्ले, बड़े हालेलुया दे नारे, झूठे, है ना, होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। अंदर दिल से ये मेरी तरफ माइल नहीं होते, सिर्फ होंठों, जुबान से ही, होंठों से ही मेरी तारीफ और ताज़ीम करते हैं। ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं। ये बेफायदा मेरी
उनकी दुआएं भी बेफ़ायदा, उनकी प्रस्तश भी बेफ़ायदा, उनकी इबादत भी बेफ़ायदा, उनके रोज़े भी बेफ़ायदा, उनका चर्च आना बेफ़ायदा, उनका खुदावंद के हुज़ूर झुकना, सब कुछ बेफ़ायदा, क्योंकि अगर दिल उनके खुदा से दूर है। ये रियाकारी खुदा के सामने नहीं चले, क्योंकि वो साढ़े चेहरे नहीं देखता। किसको देखता है? हमारे अंदर, दिल में। और कलाम में लिखा है खुदा बातन की सच्चाई पसंद, अंदर की सच्चाई खुदा पसंद करता है, दिल की सच्चाई खुदा पसंद करता है। लेकिन उनके दिल मुझसे दूर हैं और ये बेफायदा मेरी प्रस्तश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। वो खुदा के कलाम की सच्चाई से वाकिफ नहीं है, सच्चाई उनके पास नहीं है। ये सिर्फ इंसानी रवायात पर जोर देते हैं, इंसानी रवायात को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देते हैं, खुदा की सच्चाई को कोई अहमियत। तो जब हम तन्हाई में खुदावंद के हुज़ूर जाते हैं, हम ऐसे झगड़ों से, ऐसी झूठी रियाकारी से, ऐसी फ्रेमकारी से दस्तबरदार, यानी कि साइड पे हो जाते हैं, हाथ उठा लेते हैं, भाई मैं ये नहीं करूँगा। आप तन्हाई में दुआ करके देखें, यकीन करें, फिर आप देखें अगर कोई आपको झूठ बोलने के लिए कहेगा, आप कतई ये नहीं करेंगे, चाहे उसमें आपको कितना भी फ़ायदा क्यों ना हो। नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती। आप दस्तबरदार हो जाएंगे, अपने उस मफाद से दस्तबरदार हो जाएंगे जो दुनियावी तौर पर आपको इस झूठ से मिल रहा है, क्योंकि ये रियाकारी है, ये खुदा के सामने सिर्फ होंठों से खुदा की तारीफ करना, दिखावे के लिए। सो मेरे अज़ीज़ों, इस तरह से हमारी ये जो प्रस्तश है, दुआ मांगना है, होंठों से ताज़ीम करना है, तारीफ़ करना है, इसका कोई फ़ायदा होगा अगर हम झूठ से दस्तबरदार नहीं होते? होगा नहीं होगा? कुछ फ़ायदा नहीं है। जब हम तन्हाई में वक्त गुजारते हैं तो झूठे झगड़ों से क्या हो जाते हैं? दस्त हाथ चुक लेके की नहीं, मैं जी हाथ चुक्या भाई, मैं इस काम से शरीक, हम अपना हाथ वहाँ से उठा देते हैं और हम उनके कामों में शरीक नहीं होते, क्योंकि बाप हमें बहुत कुछ सिखाता है। तन्हाई बहुत सारी पोशीदा बातें हम पर आश्कारा करता है, बहुत सारी पोशीदा बातें हम पर ज़ाहिर करता है। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह तमसीलों में बात करते थे, शागिर्द समझते नहीं थे, तो फिर वो तन्हाई में खिलवत में जाते थे, तन्हाई में जाते थे, फिर खुदावंद से पूछते थे, खुदावंद इस तमसील का क्या मतलब है? तो खुदावंद फिर उस मतलब को क्या करते थे? समझाते थे, और वो मकासद उनकी ज़िंदगी में जो खुदावंद चाहता था उनकी ज़िंदगी में रूनमा होते थे। मेरे शिशु, जब हम ज़बूर 91 की 14वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊँगा, मैं उसे सरफराज करूँगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना। कितनी खूबसूरत बात, कितनी अमीर बात है, क्योंकि उसने मुझसे क्या लगाया? दिल लगाया। हालेलुया। अपना दिल उसके साथ लगा लें, फिर तो दिल होर किते भी लगेगा, फिर और किते नहीं लगेगा। जेड़ा इधर उधर लाई फिर ना, फिर सारा ही मामला खत्म है।
क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। वो छुड़ाएगा, वो मुसीबतों से छुड़ाएगा, वो दुखों से छुड़ाएगा, परेशानियों से छुड़ाएगा, गुर्बत से छुड़ाएगा, पसमानदगी से छुड़ाएगा, आपको सरफराज सरबुलंद करेगा। यहाँ क्या लिखा है? मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना। पहचान आ गई उसे, मेरी पहचान हासिल हो गई उसे। कितने लोग हैं जो अब तक खुदा को नहीं पहचान सकते? जब तक पहचान नहीं, फिर उससे कुछ मांग भी नहीं सकते, उसके साथ कोई रिफाकत भी नहीं रख सकते। किसी के साथ आपकी कोई जान पहचान ही नहीं है, हाँ? उसके साथ आप रिफाकत रखोगे? एक घंटा 2 घंटे रखोगे? जान पहचान ही नहीं है। नहीं भाई, मैं तो उन्हें जानते नहीं, मैंने पता ही नहीं कौन है। आप जब पहचान लेते हो और खुदा से आपका दिल लग जाता है, तो खुदा भी वो सब करता है जिसका उसने वादा। मेरे ये बड़ी अहम बात है कि आप शख्सी तौर पर बिला नागा, अगर आप चाहते हैं कि आपको सही तहरीक मिले, सही समत की तरफ आप जाएं, सही दुआ करना आप सीख जाएं, तो आपको तन्हाई में खुदा के हुज़ूर झुकना है, दुआ करनी है। और फिर खुदा के साथ बतौर बाप रिश्ता है आपका बहाल होता है, कायम होता है, और सही रिश्ते के साथ आप फिर बाप से मांगना शुरू करते हैं। जितना चेर सही रिश्ता भी ना हो, और देखिए अपने बच्चों को, किन को? क्योंकि उनके साथ बाप और बेटे का क्या है? रिश्ता है। तो अगर कोई दूसरा बच्चा आकर कहे जी मैनू ऐ दे दो, उसका बाप ना हो, वो क्या करेगा? दे, क्योंकि उसके साथ उसका कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं है। तो आप सही रिश्ते में कायम होते हुए बाप से मांगते हो कि वो हमारा आसमानी बाप है, और वो हमारे मांगने के मौके हमें ज़रूर देता है। और लिखा है वो रूह कुद्दस देगा। क्या देगा? ये सबसे अनमोल तोहफा, अनमोल गिफ्ट है, और जिसके वसीला से हम आसमानी बाप के साथ हमारा तल्लुक जो है वो कायम हो जाता। बाप बेटे और बाप बेटी का रिश्ता बहाल हो जाता है, कायम हो जाता है। खुदा उन पर मुकम्मल भरोसा, यकीन, जब हम दुआ में वक्त गुजारते हैं तो फिर हमारा यकीन, भरोसा और मजबूत होता चला जाता है कि जो कुछ मैंने मांगा है वो मुझे देगा, और वो देता भी है। फिर झूठे झगड़ों से, यानी जो मुंह पर तो कुछ और हैं, अंदर कुछ और हैं, इनसे आप अलहदा हो जाए। फिर आपकी प्रस्तश, आपकी दुआएं, आपकी सताइश, आपकी खुदा के हुज़ूर झुकना, आपकी इबादत, कलाम सुनना, पढ़ना, अमल करना खुदा को पसंद आएगा। और ये सारी बातें दुआ के वसीला से आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, ताकि आप ईमान में और मजबूत और पुख्ता होते चले जाएं, और यकीन भरोसे के साथ खुदा के हुज़ूर में झुकते और ईमान के साथ मांगें, क्योंकि लिखा है वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे जवाब, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा, मैं उसे छुड़ाऊँगा और इज़्ज़त, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा और अपनी निजात उसे दिखाऊँगा। ये वो चीज़ें हैं जो खुदा के अलावा कोई और दे नहीं सकता, बाप के अलावा कोई और दे नहीं सकता। तो आए अपने सरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएं और दुआ की अहमियत को समझते हुए, जानते हुए, सबसे पहले आप तन्हाई में शख्सी तौर पर बिला नागा खुदा के साथ दुआ के ज़रिए अपने तल्लुक़ को कायम करें। उसके बाद फिर देखें कैसे कैसे भेद खुदा आप पर खोलता और आश्कारा करता है। खुदा आप सबको बरकत दे। आए झुके